تفصیلات کے مطابق جمعے کے روز 1 اکتوبر سن 1991 میں دن 11:30 بجے چوک ریلوے اسٹیشن پر سرگودا ویگن اسٹینڈ کے ساتھ واقع شیش محل بلڈنگ کے 7 اپ چوک میں بم کا زبردست دھماکہ ہوا۔ جس کے نتیجے میں کھوکے کے باہر بیٹھی ہوئی ایک 50 سالہ نامعلوم گداگر عورت جاں بحق اور کھوکے کے مالک محمد اکبر حسین سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ کھوکے کے ساتھ واقع ایک ہوٹل کی چھت اڑ گئی اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والی عورت کے جسم کے ٹکڑے فضا میں اڑ گئے۔ بم کے ٹکڑے لگنے کے سبب زخمی ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ چونکہ ریلوے اسٹیشن پر ہر وقت مسافروں کا رش رہتا ہے، مگر اس وقت کچھ گاڑیاں روانہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کی تعداد کم تھی، ورنہ ہلاکتوں کا زیادہ خدشہ رہتا۔ میں اپنی شاپ پہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور دکانداری میں مصروف تھا۔ اس کے بعد دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد جب مجھے اسپتال لے آیا گیا، مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد مجھے یہ پتہ لگا 26 دن کے بعد جب میں ہوش میں آیا، اور یہ دماغی آپریشن، پھر وہ پیٹ میں چھلے، پھر یہ آنکھوں میں چھلے۔ اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ آج 26واں روز ہے جی، وہ میں نے کہ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا یہ ایک دھماکہ تمہاری دکان میں دھماکہ ہوا تھا، تو یہ بم دھماکہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر مختلف اسپتالوں سے ہوتا ہوا، جب بہت میرے یہ پیٹ کے اندر میرے 9 آپریشن ہوئے جسم کے اندر، وہ 9 آپریشنوں میں مسلسل وہ تکلیفیں میں کاٹتا رہا۔ پھر وہ جب میں یہ آنکھوں کی جو میری یہ آنکھوں کی ایک آنکھ جو یہ ہے یہ نکل گئی، 2 آنکھیں تھیں لیکن ایک آنکھ جو ہے یہ بم کی شرلے کی وجہ سے نکل گئی۔ اس آنکھ میں 3 شرلے لگے تھے، لیکن یہ آنکھ وہ ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے نکال دی، لیکن انہوں نے کہا یہ پردہ ڈیتھ ہو گیا ہے، نظر آپ کی جو ہے نا وہ اللہ ہی دے گا، میڈیکل میں اب کوئی چکر نہیں ہے۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ ان کا بس اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ان کی ایسی کوئی ان کے آفت ڈال دے کہ دنیا سے ختم ہی ہو جائے، یا انہوں نے ملک کو برباد کر رہے ہیں، جوان بیٹوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کو معذور کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا نکلے گا؟ ختم ہی ہو جائے ایک طرح کے۔ اللہ ان کو کوئی کیا کر سکتا ہے بتائیں؟ اب ان کو کوئی نہ پکڑتا ہے، نہ ان کو کوئی ان کو کوئی سزا دے رہا ہے، ایسی پھر رہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اس وقت برائے نام تھا، زیادہ نہیں تھی، کبھی مہینے میں 2 مہینے میں 6 مہینے میں کدھر بم پھٹ گیا کہیں۔ یہ نہیں کہ جیسا آج کل کا ماحول ہے کہ روزانہ گولیاں چل رہی ہیں، کہیں بم پھٹ رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں۔ مہنگائی بھی نہیں تھی، رات کو 2 بجے آپ اپنے جہاں مرضی چلے جاؤ آ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ تو اب تو جو ہے وہ رات کو نکلنے دشوار ہے، گھروں میں گھس جاتے ہیں دن میں بندے، آج کل تو یہ ہو رہا ہے۔ محمد اکبر حسین آج تک حیران ہے کہ آخر وہ بم کون رکھ کر گیا تھا، بم کس چیز میں تھا، اور بوتلوں کے پیچھے کس نے رکھا تھا، اور وہ کون تھا جس کی ان سے دشمنی تھی، اور ہمیشہ کی طرح نامعلوم ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے وہ فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی، اور ایک شخص اپنی زندگی کی بوسیدہ سی کتاب لیے ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ 1991 کی بات ہے، جمعے کا دن تھا، 11:30 بجے صبح کا دوپہر کا ٹائم تھا کہ میں اپنے کاروبار میں مصروف تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ 26 دن کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میں دنیا میں موجود ہوں۔ ہزاروں یتیم بچے ہو گئے، ہزاروں جوان ہمارے فوجی شہید ہو گئے، ہزاروں ہماری انتظامیہ کے پولیس اہلکار شہید ہو گئے، ہزاروں جناب مارکیٹوں میں ہماری مائیں بہنیں اگر وہ شاپنگ کرنے گئی ہیں وہ وہاں ماری گئی ہیں، بچے مارے گئے۔ بلکہ میں دہشت گردوں سے یہ کہتا ہوں بھائی خدا کے لیے اگر تم کوئی دین رکھتے ہو، تمہیں اس دین کا واسطہ نہ ایسا کرو، نہ لوگوں کو اندھا نہ لاچار کرو۔ بہت زخمی تھے، اتنے زخمی تھے کہ آپ ان کو ہم نے شناخت ہی نہیں کری، یہ ہمارا بیٹا ہے، اتنی شناخت نہیں کری۔ پورے آپ ان کی قمیض اتار کے دیکھیں، ایک ایک چیز کٹی بھی ہے، اتنا یہ گوشت سب اڑ گیا تھا، یہ سب اڑ گیا تھا، یہ جسم کا پسلیاں اور یہ اندر معدہ تک جگر سب کچھ کٹ گیا تھا۔
चंद शरपसंद आदमी हैं जो शैतान के चेले हैं, वो फिर रहे हैं और वो पैसे खा रहे हैं गैर मुल्कियों से, इधर से उधर से, और ये हंगामे करते फिर रहे हैं। उनको एहसास ही नहीं है कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, क्या हो रहा है। हमें एक बेदार मग़ज़ कौम बनने की ज़रूरत है। अपनी इस मिट्टी के साथ बाह मोहब्बत और उख़्वत पर मबनी ऐसा सच्चा, गहरा और मजबूत ताल्लुक़ कायम करना होगा कि दुनिया की कोई बातिल क़ुव्वत पाक सरजमीन और इसमें बसने वाले किसी भी इंसान के खिलाफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न कर सके। ऐसा तब मुमकिन है जब हम अपने आला तरीन जज्बों के साथ अमली जिंदगी में कदम रखेंगे और मिलजुल कर बातिल क़ुव्वतों के आगे साबित कदम रहकर उनका मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दों को पहचान कर उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की बुनियादें बड़ी मजबूत हैं। हम तौहीद परस्त कौम हैं और हम एक ऐसी कौम है कि जिसकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, और इस्लाम वो है जो कि किसी एक शख्स ने नहीं दिया, इस कायनात के खालिक ने दिया है, जिसने इतनी ज़बरदस्त कायनात बनाई है। तो क्या वो ज़बरदस्त आइडियोलॉजी नहीं हमें दे? तो ये बातें सामने रखते हुए ये यानी एक बुनियाद ज़हन में ये बात क्लियर रखनी चाहिए कि बुनियादें हमारी मजबूत हैं, हमारे अंदर हौसला, हमारा पोटेंशियल आगे बढ़ने का बहुत है। चंद पैसों के लिए सबकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। क्या मिलता है? आखिरत में उनकी कितनी ख़राब होगी, आखिरत कितनी ख़राब होगी। इंसान जानवर को कोई देखता है तो उसको देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जानवर इतनी तकलीफ़ में है, वो तो सारी ज़िंदगी में तकलीफ़ में हो गए। मिनट मिनट में उनको ठोकर लगती है, मिनट मिनट में ठोकर लगती है। लम्हा जाते हैं, कहीं ठोकर लग जाती है, कहीं सर पे लग जाती है, कभी कहीं लग जाती है। मुताज ही ना, मगर क्या कर सकते हैं। उनको तो हम अल्लाह की तरफ से कुछ का, अल्लाह ही उनको अकल देगा या अकल ही उनको वो कर सकता है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो भाई मुताज कर दिया ना। मैं तो दहशतगर्दों को सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा कि वो ये है कि अगर उन्होंने मारना है तो उसको मारो, जिनके करतूत हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्द बने हैं। गरीब आदमी ने तो कुछ नहीं किया उनका। आप गरीबों को, बच्चों को मारते हैं, वजह इसकी, गरीबों के बच्चों को क्यों मारते हो भाई? गरीब का बच्चा मरेगा तो वो तो बद्दुआएं देगा आपको। गरीब आदमी तो मर जाते हैं, बेटा कत्ल हो गया, शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, बीवी ने खुदकुशी कर ली। ये गरीबों के पास और क्या है? यकीनन हम अपने मुआशरे को दहशतगर्दी से पाक और अमन व अमान का गहवारा देखना चाहते हैं, तो क्यों ना इसके लिए मिलजुल कर अपना किरदार अदा करें। एक इंसानी जिंदगी को बचाना गोया पूरी इंसानियत को महफूज करने के बराबर है। तो फिर दहशतगर्दी की नजर होकर मुआशरे से कट जाने वालों पर भी एक निगाह डालिए कि इनकी जिंदगी में रंग भरना हमारा फरीजा है, क्योंकि ये भी इसी दुनिया के बासी हैं और जीते जागते इंसान हैं। फर्क ये कि दहशतगर्दी की चलती हवाओं के थपेड़ों ने इनके चेहरे को गर्दालूद कर दिया है और दिल से जीने की उमंगें छीन ली हैं। यकीनन हम किसी भी खानदान को मुतासरीन में से नहीं देखना चाहते कि जिस दिल पर गुजरती है वो ही जानता है। पूरी ज़िंदगी माजूरियत में उसकी गुजर गई। जाहिर जब ठोकर लगती है, क्या बेचारा कोई, देखो ना सब दुनिया हंस रही है, बोल रही जाहिर एक इंसान ऐसे बैठा हुआ है, तो क्या करें कि ज़िंदगी कैसी बर्बाद कर दी है दहशतगर्दों ने। ये दुनिया से जने कब ख़त्म होंगे, कब इनका खात्मा होगा। मेरे बच्चे इतनी अजियत से पले, मैं इतनी अजियत की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अगर वो, मैं उनसे अपील करता हूँ कि ऐसी ना करें, इतना जुल्म ना ढाएं, ना ऐसा करें कि जो जगह जगह बम फटते हैं वहाँ पे जनाब किसी का हाथ नहीं होता। और फिर मैंने तकरीबन आज तक मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। आज तक मैं अगर कोई 150 मेरे बच्चे लाते हैं, बाज़ दिन में ये इतनी तकलीफ़ें होती हैं कि फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो इतनी महंगा इलाज है कि आप यकीन करें कि मैं बाज़ टाइम कहता हूँ नहीं बेटा दवाइयाँ रहने दो, कोई बात नहीं। तो खुदा के लिए मैं फिर अपील करता हूँ दहशतगर्दों से कि आप दहशतगर्द यूँ कि मैं आपको और किस लफ्ज़ से याद करूँ। अगर मेरे लिए आप अच्छा काम करते तो मैं आपको दुआएं देता। अगर आपने मुझे इस अंधेरे में बिठाया हुआ है तो मैं आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं कर सकता। एक आम आदमी जो दुनिया देख रहा था, 18-20 साल तक देखता रहा, चलता फिरता रहा, स्कूलों में पढ़ता रहा, उसकी दुनिया ये है
तो अल्लाह ही इसका मददगार है ना। हम तो जब तक हैं, देखो ना आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता, इसके भाई भाई भी हैं, उनकी भी शादियाँ वादी हैं, तो वो उसका साथ देंगे। आजकल अपना पूरा नहीं होता, आजकल अपना पूरा नहीं होता। अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो 10,000 के तो बिल आ जाते हैं किसके, बिजली के। और अकबर हुसैन ये तो जानता ही है कि अगर जिंदगी से रंगों को निकाल दिया जाए तो सिर्फ स्याह रंग बच जाता है, और तारीकी को घूरती खाली खाली ये आंखें कभी उस रंग और रोशनी को भी देखने की आदी थी जो अब वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। यही वीरानी अंदर भी है और बाहर भी, शायद नजर ना आने वाली उन आवाजों में भी, जिनके चेहरों को अब पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये घास, ये पत्ते, ये हरियाली, स्टेशन वगैरह, गाड़ियाँ, क्या दिन थे 20-22 साल पहले, सब देखा करता था। अब तो इस जगह आके भी बड़ा दिल घबराना शुरू हो जाता है, दिल रोता है। ये वो जगह हैं जहाँ मैं अक्सर आके बैठा करता था अपनी जवानी के टाइम में, बचपने में। ये दहशत गर्दों ने जो मेरा हाल किया है कि मैं अब दुनिया की कोई चीज़, कोई रंग, कोई चीज़ नहीं देख सकता। और उन्होंने जो मुझे 7 किस्म की ये माजूरी दी है कि मैं उठ के ही घास पे नहीं चल सकता, कोई फूल नहीं पकड़ सकता। भाई दहशत गर्दों ने जो ये हाल करा है, मैं अपने रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, अगर वो कहीं अपने मनहूस इरादे कहीं कर रहे हो तो वो उन पर उल्टा ही चला दे और उनको पता लगे कि ये अज़ियतें हैं, ये ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। दहशतगर्द अपने हमलों में कितने ही मासूम और बेगुनाह लोगों के परखचे उड़ा देते हैं और हंसते बसते घरों को मातम कता बना देते हैं, उनको उजाड़ देते हैं, बच्चों को यतीम और औरतों को बेवा और बेआसरा कर देते हैं। यूं सरेआम मिनटों में लोगों को मौत के घाट उतारना कहाँ की इंसानियत है। अब वो खुद मोहताज आ गए, हमारे बच्चों से कहते हैं ज़रा मेरे को सौदा लेके आओ, ये लेके आओ। अब रमज़ान है, रमज़ान में ये इतना हमारे लिए फल लेके आते थे, खुद फ्रूट चाट बना के हमें देते थे, अब वो नहीं कर सकते। कारोबार ना करें, घरों में बैठ जाएं, तो अगर घरों में बैठ जाएं हम खाएंगे कहाँ से? क्या फिर ये जो बिल हैं इतने इतने आते कहाँ से देंगे? इस महंगाई के दौर में हम कहाँ से रोटी खाएंगे? अगर हम कारोबार करते हैं वहाँ ब्लास्ट होते हैं, अगर ब्लास्ट होते हैं तो वहाँ हमारा कोई जवान भाई मर जाता है। अब अगर मुझे मौत ने नहीं छुआ, लेकिन मैं मौत से बदतर ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं। माँ है वो रोती रहती है, बहनें हैं वो देख देख के रोती हैं, अब रोने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। या अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारी ताला हमारे ऊपर करम कर दे। मेरे 20 साल गुजर गए, मैं लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी हादसा हुआ है। टीवी में और बच्चों के लिए देखती हूँ कि माँ बम फट गए, वो हादसा हो गया, उधर हो गया, मुझे अकबर की आ जाती है एकदम दिमाग में। देखो ना, अब ये तो सारी जब तक जिंदा है ये माजूर है, ना चल सकता, ना फिर सकता, ना कुछ कर सकता। ये ख़ुदकुशी करने वाला जो अपने साथ दीगर अफराद को लेके जा रहा है, उसके जहन को इस तरह तैयार कर दिया जाता है कि भाई तुम जैसे ही ख़ुदकुशी के इस अमल से फारिग होगे और तुम्हारी जान निकलेगी, तुम बराह रास्त जन्नत में चले जाओगे। उसके सामने ये तालीमात नहीं रखी जाती कि दूसरे को कत्ल अम्द करने वाला जहन्नुम का ईंधन बनता है, दूसरे को कत्ल अम्द के ज़रिए मारने वाला अल्लाह के ग़ज़ब व लानत का हक़दार ठहराया जाता है, उसके लिए अज़ाब अज़ीम, अज़ाब अलीम तैयार किया जाता है। यह बात उसके जहन में नहीं डाली जाती। अकबर हुसैन और इन जैसे लाखों मुतासरीन अपने अधूरे ख्वाहिशात और अधूरे जिस्मों के साथ अपने जहनों के पर्दे पर सिर्फ एक वाक़े को तहरीर देखते हैं, और वो नाखुशगवार वाक़या उस हद तक उनके जहनों पर हावी होता है कि ज़रा सी आहट भी उनके दिल धड़का देती है और खौफ का एक साया चेहरे पर रेंगना शुरू हो जाता है और लबों पर सिर्फ एक सवाल उभरता है कि आखिर हमारा कसूर क्या था जिसकी पादाश में इतनी बड़ी सज़ा दी गई।